السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مقدس اور باب برکت مہینہ جس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے، اور اس مقدس مہینے کو ہم سب کے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بیان فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ یعنی حضور کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ امت کا مہینہ ہے۔ اور شعبان المعظم کی مقدس ہونے اور اس کی بابرکت ہونے کے لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ماہ رمضان شریف کا پڑوس ہے، یعنی ماہ رمضان شریف جو آتا ہے وہ شعبان المعظم کے بعد آتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی شعبان المعظم کی بڑی برکتیں، اور ساتھ ہی ساتھ شعبان المعظم کا یہ جو مہینہ ہے، اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی عظمت ہے کہ اسی مقدس مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو 15ویں شعبان کی شب ہوتی ہے، یعنی ابھی جو منگل کا دن آنے والا ہے، منگل کا دن گزر کر جو رات آئے گی وہ شب برات 15ویں شعبان کی مقدس رات ہے۔ 15ویں شعبان کی جو عظیم رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، آخر ہمیں اس رات کو کیسے گزارنا ہے اس تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آج بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو بھی مقدس ایام ہوتے ہیں، مقدس دن ہوتے ہیں، مقدس اوقات ہوتے ہیں یا مقدس جگہیں ہوتی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، یا مقدس شخصیات ہوتی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور شب برات ہم سب کے لیے، پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ شب برات عطا فرماتا ہے سال میں ایک بار، یا شب قدر ماہ رمضان میں 27ویں رات، شب معراج، یہ سب کیوں راتیں آتی ہیں؟ صرف وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی برکت سے اپنے بندوں کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں، میرے محبوب کی جو امت ہے، میرے بندے ہیں، وہ کسی بھی بہانے سے بخش دیے جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ایسی برکت بعظمت راتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔
शाबान उल मुअज्जम की ये 15वीं रात, इसमें खसूसियत के साथ एक बात जहन में रखें कि आप देख सकते हैं कि शब बारात में अक्सर हमारे मुसलमानों का हाल क्या कि इशा की नमाज पढ़ लिए और पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठ नहीं सकते, मस्जिद से बाहर आ जाते हैं, कोई टू व्हीलर लेकर के तमाशाबाजी करते हैं रास्ते में, कोई जो है चाय की होटल में टाइम पास करते हैं, कोई घरों में टाइम पास करते हैं, और कुछ बदनसीब तो ऐसे हैं जो घरों में सोते रहते हैं। ऐसे रातों की भी कदर करने की उन्हें तौफीक नहीं मिलती, और ऐसे बदनसीब लोग हैं कि जो ऐसी मुकद्दस रातों में भी हर रात की तरह सो करके गुजरते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अफसोस की बात यह है कि जो पुलिस है, जो गैर मुस्लिम होते हैं, उनमें से कुछ लोग मुसलमान और बाकी के गैर मुस्लिम, उनको भी जो है उस रात में, मुकद्दस रात में, खामा रास्तों में खड़े होकर के रास्तों की हिफाजत करनी पड़ती है। वजह क्या? मुसलमानों के कुछ लड़के ऐसे हैं जो उस रातों में रास्तों के अंदर औधम मचाते हैं, गाड़ियां लेकर के तमाशाबाजियां करते हैं, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम पुलिस वालों को भी, बल्कि सारे पुलिस वाले, उसमें जो मुसलमान होंगे गैर मुस्लिम कोई भी हो, सबको खामखा पूरी रात जगह जगह पर खड़ा रहना पड़ता है। और मुसलमान जो है अपनी पहचान इस तरीके से गैरों के सामने दिखाते नजर आते हैं। ये सब अफसोस की बात है कि ये रात बहुत मुकद्दस और बाअज़मत रात अल्लाह ने क्यों अता फरमाई, इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करें। इस मुकद्दस रात में 5 खास काम इस रात में होते हैं। वो क्या? ये पहला ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इसमें तक़सीम उमूर होता है, और दूसरी जो खास चीज इस रात में होती है वो है नुज़ूल रहमत, और तीसरी जो खास चीज जो इस रात में होती है वो फैज़ान बख्शिश, और चौथी जो खास चीज इस रात में होती है वो कबूल शफाअत, और पांचवी जो खास चीज इस रात में होती है वो फजीलत इबादत। ये 5 चीजें इस रात में खास हैं। सबसे पहले तक़सीम उमूर। तक़सीम उमूर किसे कहते हैं? कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह दुखान में इरशाद फरमाया, हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है रोशन किताब की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, बेशक हमने इसको मुबारक रात में उतारा, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम, अमरम मिन इंदिना, हमारे पास के हुक्म से, इन्ना कुन्ना मुरसलीन, बेशक हम भेजने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन आयत करीमा में शब बारात ही के ताल्लुक से बयान फरमा रहा है। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है, और इसमें अल्लाह ने फरमाया फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इसी को तक़सीम उमूर कहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब शाबान की 15वीं रात आती है तो इस रात में अल्लाह ताला बंदों के मामलात को लिखवाता है फरिश्तों के जरिए, कि इस पूरे साल, यानी इस शब बारात से लेकर अगले शब बारात तक किसको उरूज अता फरमाना है, किसको जवाल अता फरमाना है, किसको कामयाब करना है, किसको नाकाम करना है, किसको कितना रिस्क देना है, कौन इस साल पैदा होगा, कौन इस साल मरेगा, हत्ता कि कौन इस साल हज करने वाला है, और किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, वह सारी चीजें इसी रात में अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से लिखवाता है। अब देखिए कितनी नाजुक रात है, कितनी नाजुक रात, कि इस रात में हमारे जिंदगी के मामलात को अल्लाह फरिश्तों से लिखवा रहा है। अगर इस साल हमारी मौत अगर है तो वो मौत हमारी उस रात लिखी जाती है कि इस साल फला बंदे का इंतकाल होना है, फला तारीख को फला वक्त में। अगर किसी के घर में किसी बच्चे की पैदाइश होनी है तो इसी रात में लिख दिया जाता है कि फलां को इस साल औलाद अता फरमानी है, फलां को बेटा होगा या फलां को बेटी होगी।
अगर किसी को हज करना है तो अल्लाह ताला उसका नाम भी इस रात में लिखवा देता है कि फलां को इस साल हज करवाना है। इस तरीके से जिसको जितना रिस्क मिलना है, किसको हार मिलेगी, किसको नाकामी मिलेगी, किसको कामयाबी मिलेगी, ये सारी चीजें आज शबे बारात में अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से लिखवा देता है। इतनी अहम रात है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि सरकार फरमाते हैं कि शबे बारात में ऐसा भी होता है कि कोई बंदा होता है, उसकी शादी उसकी शादी भी मुकर्रर कर दी जाती है शबे बारात में कि इस साल उसकी शादी होनी है, और साथ ही साथ ये भी मुकर्रर कर दिया जाता है कि इस साल उसको औलाद मिलनी है, और साथ ही साथ ये भी मुकर्रर कर दिया जाता है कि इस साल उसका इंतकाल भी होना है। अब देखें, गौर करें, कई ऐसे लोग हैं कि जिनको मालूम भी नहीं कि इस साल उनका इंतकाल होना है, और वो लोग मजे में बैठे हुए। एक हदीस पाक का मफहूम है कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो गफलत में रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फलां दुकान के अंदर, फलां कपड़े की दुकान के अंदर उनके कफन का कपड़ा जो है तैयार। ये इतनी नाजुक रात है कि इस रात में अल्लाह लिख देता है कि किसको इस साल मरना है, किसको इस साल जीना है, किसको इस साल कितना रिस्क मिलना है। अब बताएं कितनी नाजुक रात है। मिसाल के तौर पर किसी के घर में किसी की अम्मी या अब्बा का ऑपरेशन होने वाला है, बहुत बड़ा ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन के वक्त जो बेटा होता है या बेटी होती है, वो ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल बाहर वो बैठ जाता है इंतजार में, और रो रो करके वो दुआ भी कर रहा है बैठे बैठे। मुझे बताओ, ऐसी नाजुक घड़ी में जिसकी माँ का या जिसके बाप का ऑपरेशन हो रहा हो, ऐसी नाजुक घड़ी में क्या कोई बेटा ऐसा होगा जो जाकर के रास्तों में जो है व्हीलिंग मारना या रास्तों में तमाशाबाजी करे? कोई ऐसा लड़का मिलेगा? नहीं मिल सकता। क्या कोई ऐसी नाजुक वक्त में जिसकी माँ का या बाप का ऑपरेशन हो रहा हो, वो जाकर के दोस्तों के साथ टाइम पास करेगा? वो जाकर के चाय की होटल में बैठ करके टाइम पास करेगा? नहीं, बल्कि वो क्या करेगा? माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ करके वो रब की बारगाह में रो करके दुआ करेगा। बिल्कुल ऐसे ही ये जो शबे बारात आने वाली है, ये इतनी नाजुक रात है कि इस रात में हमारी जिंदगी लिखी जा रही है, हमारी मौत लिखी जा रही है, हमारा रिस्क लिखा जा रहा है। और ऐसी नाजुक रात में अगर हम बाहर टाइम पास करेंगे, चाय के होटल में टाइम पास करेंगे, सोकर टाइम पास करेंगे, या गाड़ियों में औधम मचा करके टाइम पास करेंगे, मुझे बताओ, इतनी नाजुक रात में जहां हमारी गोया के तकदीर लिखी जा रही हो, ऐसी रात में अगर हम फजूल कामों में मुब्तला होकर के अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाएं, तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? इतनी नाजुक रात को जाया नहीं करना चाहिए। बहुत अजीम रात है, बहुत अजीम। अब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात को कैसे गुजारते थे, उसको आप सुने। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि आयशा जानती हो कि हजरत आयशा सिद्दीका खुद फरमाती कि मैंने हुजूर को अक्सर माह रमजान के बाद सबसे ज्यादा किसी महीने के रोजे रखते हुए हुजूर को देखा है तो वो शाबानुल मुअज्जम के। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने हुजूर से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखती हूँ कि आप अक्सर माह रमजान के बाद अगर किसी महीने के आप सबसे ज्यादा रोजे रखते हैं तो वो शाबान के, यहाँ तक कि शाबान के रोजों को रमजान से हुजूर मिला देते थे। यानी 29 या 30 तारीख शाबान की आती तो 29-30 तारीख को भी रोजा रखते थे, और माह रमजान के 1वें रोजे से बिल्कुल उसी रोजाना ऐसे ही रोजों को मिला करके हुजूर माह रमजान के रोजे रखते थे। आखिर इसकी वजह क्या है कि हुजूर सबसे ज्यादा शाबानुल मुअज्जम के रोजे क्यों रखते हैं माह रमजान के बाद? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, सरकार ने फरमाया कि आयशा, शबे माह शाबान में एक रात है जिसको शबे बारात कहते हैं, और इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों के, अगर किसी बंदे की मौत होने वाली है इस साल, तो उसका वक्त वफात यानी उसके इंतकाल होने का वक्त इस रात में अल्लाह लिख देता है। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरा वक्त वफात अगर इस साल में हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरा वक्त वफात यानी इंतकाल का वक्त इस हाल में लिखा जाए कि मैं रोजे से रहूं, मैं रोजे से रहूं।
हालांकि हुजूर को मालूम है कि हुजूर को अल्लाह ताला ने ये इल्म अता फरमा दिया कि हुजूर को कब दुनिया से तशरीफ ले जाना है, कब हुजूर का इंतकाल होने वाला है। ज़ाहिरी तौर पर हुजूर को मालूम था सब, लेकिन हुजूर ने ये क्यों अमल करके दिखाया? ताकि हम सब की तालीम के लिए, हम सब हुजूर की सुन्नत समझ करके अगर इस रात का एहतमाम करेंगे तो हमारी तालीम के लिए हुजूर ने ये एहतमाम फरमाया। हालांकि हुजूर को अपने बारे में, सबके बारे में हुजूर को मालूम है, अल्लाह ने सब कुछ उनको इल्म अता फरमा दिया, फिर भी हुजूर ने अपनी उम्मत की तालीम के लिए ये खास एहतमाम करते थे कि हुजूर इस महीने के कसरत से रोजा रखते थे। वजह क्या? वजह ये कि इसी महीने की एक रात शब बारात में अल्लाह ताला अगर किसी बंदे का इंतकाल होना है तो उसकी वक्त वफात यानी उसके इंतकाल का वक्त लिख देता है। और हुजूर चाहते थे कि अगर मेरा वक्त वफात इस साल लिखा जा रहा हो तो मेरी तमन्ना है कि मैं रोजे से रहूं, या मैं अल्लाह ताला को राजी करने के लिए नेक अमाल में रहूं। इसलिए हुजूर जो है ना इस महीने का रोजों का एहतमाम फरमाया करते थे। आप देखें शब बारात में भी हुजूर ने, शब बारात का हुजूर इस तरीके से एहतमाम इंतजाम करते हैं कि पूरी रात हुजूर अलैहिस्सलाम इबादत में, तिलावत में और रियाजत में हुजूर गुजारा करते थे। यह है तकसीम उम्र। दूसरी चीज जो इस रात में है, दूसरी और तीसरी चीज वो है नज़ूल रहमत और फैजान बख्शिश। यानी इस रात में अल्लाह ताला अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है। शब बारात के कई सारे नाम हैं, एक नाम इसका यह है लैलतुर रहमा यानी रहमत की रात, क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला रहमतों को नाजिल फरमाता है, इसलिए इसको लैलतुर रहमा यानी रहमत की रात कहा जाता है। और शब बारात का एक नाम ये भी है लैलतुल बराअ, जिसको हम शब बारात कहते हैं। बारात का माना है जहन्नम से छुटकारा, तो गोया ये जहन्नम से छुटकारे वाली रात होती है शब बारात। तो इस तरीके से इसके कई सारे नाम हैं। इसमें अल्लाह ताला आम बख्शिश का ऐलान फरमाता है। नुज़ूल रहमत का नुज़ूल भी होता है और बख्शिश, आम बख्शिश का ऐलान भी। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि जब 15वीं शाबान की रात आए, हुजूर फरमाते हैं कि तुम उस रात को इबादत में गुजारो, और जब उसका दिन आए तो उस दिन में रोजा रखो। ये कौन फरमा रहे? हुजूर अलैहिस्सलाम। शाबान की रात, 15वीं रात शब बारात कैसे गुजारना हुजूर सिखा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं कि जब 15वीं शाबान की रात यानी शब बारात आ जाए तो उसमें तुम इबादत करो, और उसका दिन जब आ जाए तो उसमें रोजा रखो। बेशक अल्लाह ताला गुरूब आफताब से, यानी 15वीं रात की गुरूब आफताब, मगरिब का वक्त जब शुरू होता है तब से लेकर सुबह सादिक फजर तुलू होने तक पूरी रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाकर अपने बंदों को अल्लाह ताला की रहमत पुकारती। बताइए, और दिनों में हम रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते, मौला हमारी दुआ कबूल फरमा, लेकिन शब बारात ऐसी रात है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमा करके अपने बंदों को पुकार रही है। इससे बढ़कर सआदत क्या होगी बंदों के लिए कि अल्लाह की रहमत बंदों को पुकार रहे। और दिनों में और रातों में हम अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन शब बारात में अल्लाह की रहमत अपने बंदों को पुकार रहे। अब क्या पुकारती है? सबसे पहले जो अल्लाह ताला अपने बंदों को, अल्लाह की रहमत जो अपने बंदों को से मुखातिब होकर पुकारती, वो क्या? अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसकी मगफिरत करूं। सबसे पहले मगफिरत इस रात में करना क्या है? नमाज इशा अदा करना है, नमाज इशा के बाद मस्जिद में रहना है, जो भी इस रात की खासियत होगी वो उलमा की तकरीर से सुनना है, और उसके बाद नवाफिल की पाबंदी करना है, और फिर खुसूसन इस रात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत। कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में कब्रिस्तान जाते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा एक रात सरकार जो है बिस्तर पर तशरीफ नहीं थे, तो मैं तलाश के लिए निकली, तो मैंने देखा कि हुजूर जन्नतुल बकी यानी मदीना शरीफ में जो कब्रिस्तान है उसको जन्नतुल बकी कहते हैं। जन्नतुल बकी में मैंने हुजूर को देखा कि हुजूर वहां पर रब की बारगाह में दुआ मांग रहे हैं। सैयदा आयशा पाक कहती है, मैंने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह आप यहाँ पर? तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा जानती हो आज कौन सी रात है? आज 15वीं शाबान की रात है, यानी शब बारात है।
ये सारी चीज खुसूसन हुजूर बताने का मकसद क्या हदीस पाक ये कि हुजूर कब्रिस्तान जाते और जाकर के वहां रब की बारगाह में दुआ मांगते थे उन मरहूमीन के लिए। तो कब्रिस्तान जाना ये क्या है? शब बारात में सुन्नत है। जाना चाहिए कि अपने दादा दादी या जो भी अपने रिश्तेदार हैं अपने अब्बा के साथ या अपने घर वालों के साथ कब्रिस्तान जाकर के वहां उन मरहूमीन के हक में मगफिरत की दुआ करनी। जितना आपको कुरान पढ़ना आता है, सूरह फातिहा पढ़ना आता है, दुरूद पाक पढ़ना आता है, कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ना आता है, या जो भी आप लोगों को जबानी याद है या फिर आप देख कर पढ़ सकते हैं, तो वो पढ़ करके उन मरहूमीन के कब्रों के पास खड़े होकर के उनकी रूह को उसका सवाब पहुंचाना है और उनके लिए मगफिरत की यानी बख्शिश की दुआ करनी। ये सुन्नत है शब बारात में। पूरी रात इतने सब फारिग होने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना है, इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों के से मगफिरत मांगना है, अपने गुनाहों की माफी तलब करना है रब की बारगाह में, और साथ ही साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है। इस रात अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ मकबूल कर लेता है, हर दुआ, सिवाय चंद बंदे हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह मकबूल नहीं करता इस रात में भी। उनमें से एक है बिदाती, यानी जो अहले सुन्नत वल जमात का ना हो उसकी अल्लाह मगफिरत नहीं करता। उनमें से एक है काफिर। ये कई सारी हदीसों का मजमूआ आपके सामने पेश करूं, मफहूम हदीस पाक का। काफिर पर भी अल्लाह ताला इस रात में नजर रहमत नहीं फरमाता। और जो माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को सताता है, उस पर भी अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता। अब आप में से कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। याद रखें कि शबे बारात में जहां अल्लाह रहमत अलल ऐलान बख्शिश का ऐलान फरमा रहा है, जो माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप को तकलीफ देने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों पर अल्लाह ताला शबे बारात में नजर रहमत नहीं फरमाता, यानी उनको महरूम कर देता। और ऐसे ही जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लेते हैं, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लेते हैं, ऐसों पर भी अल्लाह ताला इस रात में नजर रहमत नहीं फरमाता। ऐसे जो शराब का आदी है, शराब पीने वाले पर भी अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाता। जो जिनाकार है उस जिनाकारी पर भी अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता। ऐसे ही मुसलमानों से हसद रखने वाला, हसद यानी किसी को अच्छी चीज मिल गई तो ये दिल में जलन पैदा कर लिया कि इसे चीज छीन ली जाए, ये चीज उसको नहीं मिले तो अच्छा था, ये चीज अगर किसी के दिल में आ जाए किसी मुसलमान के ताल्लुक से, तो उस पर भी अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता। तो चाहिए कि इस रात की आने से पहले पहले रब की बारगाह में अगर ये इन गुनाहों में अगर हम मुब्तला है तो अल्लाह की बारगाह में इस रात के आने से पहले पहले अल्लाह की बारगाह में माफी मांग ले, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर ले। माँ बाप को सताए तो माँ बाप से माफी मांग ले, और रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचाए तो रिश्तेदारों से माफी मांग ले, जिसको तकलीफ पहुंचाए सबसे माफी मांग ले। स्टेटस में डाल करके माफी नहीं मांगी जाती। हाँ, ये भी एक मसला हो गया कि शबे बारात जिस दिन आना है उस पूरा दिन सबके स्टेटस में लगा रहता है, मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दे, मुझसे अगर कोई गलती हुई। ऐसे माफी नहीं होती, ये फजूल है, इसके कोई एतबार नहीं। अब वो बेचारा, देखिए गौर करें कि शबे बारात, मिसाल के तौर पर शबे बारात आने वाली है, पूरा दिन स्टेटस भर दिया गया कि मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दे। अब जब शबे बारात गुजर गई दूसरे दिन फिर वही हाल, तो ये माफी नहीं है। माफी की सूरत ये, अगर किसी को तकलीफ दिया, किसी का दिल दुखाया है, उसके पास जाकर के उससे माफी, उसके सामने खड़े होकर के उससे माफी मांगना जरूरी है। हाँ, ये बात याद रख, अगर वो दिल से माफ करे तभी माफी होगी, वरना स्टेटस में डालने से कोई माफ नहीं करता, वो खाली फजूल है, कोई उसका एतबार नहीं। जिनको तकलीफ पहुंचाए, माँ बाप को वगैरह, भाई बहनों को, सबसे माफी मांगना है, और माफी मांग के शबे बारात के लिए मुकम्मल तैयार रहना है। बड़ी मुकद्दस रात है, और इस रात में खुसूसियत के साथ कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है, तौबा इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। इस्तिग़फ़ार इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की बरकत से गुनाह तो माफ फरमाता ही है, लेकिन अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार की बरकत से कई सारी मुश्किलों को हल भी कर देता है। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, सरकार फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ो, जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात और उसकी गमों को दूर फरमा देता है, उसकी गमों और मुश्किलात से उसको नजात मिल जाती है इस्तिग़फ़ार कसरत से करने से। अच्छा, एक हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला एक बुजुर्ग है, उनके पास एक शख्स आया और आने के बाद पूछा कि हुजूर ये बताएं कि मैं इस्तिग़फ़ार की कसरत करूं या तस्बीह करूं, क्या करूं? तस्बीह का मतलब क्या? सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कसरत से पढ़ूं या इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहूं?
हज़रत सुफियान सौरी ने बहुत प्यारा जवाब दिया, फरमाते हैं कि जब कपड़ा गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, तो खुशबू लगा करके कपड़े को साफ नहीं किया जाता, बल्कि साबुन लगा करके उसको साफ किया जाता है। तुम गुनाहों से नापाक हो गए हो, पहले इस्तिगफार की कसरत करके अपने आप को पाक कर लो, उसके बाद रब की तस्बीह बयान करो। बेहतरीन उन्होंने जवाब दिया। इतनी बड़ी दौलत है इस्तिगफार। और अल्लाह ताला शबे बारात में जो सबसे पहले जो अल्लाह ताला बंदों से मुखातिब होता है वो यही कि है कोई मुझसे आज की रात मगफिरत तलब करने वाला, माफी मांगने वाला, कि मैं इसको माफ करूं। जो जो जिन जिन गुनाहों से उस रात तौबा करेगा, अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमा देगा, सबकी बख्शिश। तौबा का मतलब क्या? सिर्फ गाल पीट लेने का नाम तौबा नहीं है, बल्कि तौबा का मतलब जितने गुनाह किए, ये पुख्ता इरादा करना है कि मौला इसके बाद मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, ये इरादा करके रब की बारगाह में तौबा करना, इसी को कहते हैं इस्तिगफार, इसी को कहते हैं इस्तिगफार। और कसरत से अस्तगफिरुका या अल्लाह, अस्तगफिरुका या अल्लाह, ये कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारी इसकी बरकतें हैं कि कम से कम हर रोज 700 मरतबा इस्तिगफार करना चाहिए। कम से कम हर रोज 700 मरतबा इस्तिगफार करेंगे तो बहुत सारी इसकी बरकतें हासिल। और एक बात है, अगर कोई बीमार हो गया है, सबसे बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, या बहुत ज्यादा परेशानी आ गई है, तो उसको चाहिए कि वो नमाजों की पाबंदी के साथ कसरत से इस्तिगफार और कसरत से दुरूद पाक का विर्द करे। वजह क्या? इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की ये शान नहीं कि वो, आए महबूब आप इनमें हैं तो मैं, अल्लाह की यह शान नहीं कि मैं इन पर अजाब नाजिल करूं जब तक कि आए महबूब आप इनमें तशरीफ फरमा। और वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून, अल्लाह की यह शान नहीं कि अल्लाह इनको अजाब दे इस हाल में कि ये लोग इस्तिगफार कर रहे हैं। तो कुरान पाक की इस आयत की रोशनी में ये वजीफा है कि जिसको कुछ बीमारी आ गई या कोई मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, तो वो चाहिए कि कसरत से इस्तिगफार करे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई इस्तिगफार करता है तो अल्लाह की ये शान नहीं कि उनको अल्लाह अजाब में मुब्तला करे। बीमारी आना, मुश्किल आना, परेशानियां आना, ये सब हमारे गुनाहों की का नतीजा है। कुरान खुद कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी तुम्हें मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई। और जब मुसीबत हमारे गुनाहों का नतीजा है, तो अब इस गुनाहों से बचने के लिए क्या करना है? गुनाहों से माफी मांगने के लिए रब की बारगाह में इस्तिगफार, और इस्तिगफार करेंगे। अल्लाह का वादा है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून, जब तक बंदे इस्तिगफार करते रहेंगे, अल्लाह की ये शान नहीं कि अल्लाह उनको अजाब दे। तो कसरत से इस्तिगफार, कसरत से दुरूद पाक का विर्द करना चाहिए। खुसूसन इस रात में जो भी आपकी मुराद है, जो भी आपकी दुआ है, रब की बारगाह में मांगो। अल्लाह ताला हर दुआ इस रात में कबूल फरमाए। आपके वालिदैन के हक में दुआ, आपके घर वालों के हक में, आपके भाइयों के बहनों के हक में दुआ, अपने हक में दुआ। आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे पढ़ें, अच्छे से अच्छी तालीम याफ्ता, आपको जो है अच्छी डिग्री आप हासिल करें, या आप जो है बड़े बेहतरीन मुसलमान बनना चाहते हैं, या अपने माँ बाप के हक में, अपने घर वालों के हक में, जिन जिन के हक में आपको दुआ करनी है, आप मुकम्मल तैयार हो जाएं। शबे बारात में गिड़गिड़ा करके रब की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह का वादा है, इस रात में अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, सबकी दुआओं को। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह पूरी रात शबे बारात गुजारनी है। सोना नहीं है, बल्कि रब की बारगाह में रब को मनाना है। रब को सबको मनाना, सबको मना लिए, लेकिन अब बारी है रब को मनाने की। रब को मना ले। सबको बहुत सारी परेशानियां बता दी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगर रब की बारगाह में अपनी परेशानियां सुनाओगे, दूसरों को सुनाओगे, दुनिया वालों को, तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे पीछे। लेकिन रब की बारगाह में सुनाएंगे तो अल्लाह ताला जो है तुम्हारी परेशानियों को भी दूर फरमाएगा, तुम्हारी दुआओं को भी कबूल फरमाएगा। इस तरीके से शबे बारात गुजारनी है। और इंशाअल्लाह 14 और 15 तारीख का रोजा भी रखना है। 14 या 15 या 15 या 16 दो रोजे होते हैं, मंगल चाशुबा या फिर चाशुबा जुमेरात। दो रोजे शबे बारात के रखने हैं, और हो सके तो माह शाबान के जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा भी रोजे रख सकते हैं। तो इस तरीके से शबे बारात गुजारनी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत शबे बारात की को बेहतर से गुजारने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के गुनाहों से, बदकारियों से, और हर सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी सारे गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार
کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام.